Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. We were doing the determinants. We started determinant in the last class. Now today what we will do the very important topic that is properties of determinants. Today we will discuss the properties only. Questions we will do in next class, next video. Today what we will do the properties of determinants one by one. So let us start the properties. First property of determinant is what? The determinant of a matrix. मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा और वो जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा that will be same. That means determinant of a matrix and its transpose is same. That means what I mean to say that 1 3 4 4 2 minus 6 minus 5 minus 8 7. Suppose this is one matrix, determinant of one matrix, that will be equal to its transpose. That means this row 1 3 4 4 2 minus 6 minus 5 minus 8 and minus 7. These two will be equal. These two मैट्रिक्स, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? एक दूसरे के ट्रांसपोज, लेकिन इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सेम. That means the determinants remains unaltered, remains unchanged when we are doing the transpose of that matrix. So this is property number 1. The determinant of A is equal to determinant of its transpose. This is property number 1. Whether it is 2 by 2 or 3 by 3, whatever it is. Now, property number 2 is if all the elements of a particular row, suppose we are having row 1 ABC, row 2 DEF, but row 3 we are having 0. If all the element of a particular determinant, if all the element of a particular row or column, जैसे यहाँ पर क्या है, row 3, all the elements are 0, then this will give me 0. अगर मैं इसको expand भी करूँ जैसे हम करते हैं प्लस माइनस प्लस करके, I will get the answer as 0. तो expand करने की हमें जरूरत ही नहीं है. We will directly write if any of the row is completely 0 or column also. Suppose question is A B C 0 0 0 D E F, then this will also be 0. That means if all the element of a particular row or column are 0, then we can say that the value of the determinant will be 0. Now let us come to property number 3. What is property number 3? Property number 3 says that if we are having any two rows or any two columns identical, suppose here this is R1 and this is R3, हमने क्या चेक किया कि corresponding element जो R1 और R3 के हैं same, then the value of determinant will be 0. Or in case of column also, suppose we are having L M N P Q R L M N, then column 1 and column 3 are same, value will be 0. Suppose we are having P Q R L M N, then what we are seeing that column 1 and column 2 are identical, so the value will be 0. So this is property number 3, that whenever we are having any two rows or any two columns of that particular determinant or matrix जिसके हम determinant निकाल रहे हैं are same, then the value of the determinant will be 0. Now let us come to property number 4, and the property number 4 is, suppose we are having a determinant like this A B C L M N P Q R, and I want कि ये जो रो 2 है, I want this row 2 in place of row 1 and row 1 in place of row 2. That means I want to interchange the rows in determinant. I want, question की नीड क्या है? क्वेश्चन की नीड मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पर जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें पता लगेगा. बट इफ whenever in determinant I need to interchange the two rows, so I can do so. I can interchange the two rows by the condition is that I will apply the operation. Suppose I need to interchange these two, so I will write that R1 is interchanging to R2. I will interchange the rows. I will write L M N A B C
P Q R डिटर्मिनेंट, बट उसके बाहर लाएंगे नेगेटिव साइन. Whenever I am interchanging the two rows or two columns, I have to put the negative sign. Suppose अब यहाँ पर ये आ गया. अब मुझे मैं क्या चाह रहा हूँ? Now I want इसके बाद what I want to interchange column 2 with column 3. I can do so. I will apply column 2 interchange to column 3. Column 2 to column 3. तो what I will get माइनस एक पहले से एक और माइनस आ जाएगा. एक माइनस पहले से एक और माइनस आ गया. डिटर्मिनेंट ऑफ L A P इंटरचेंज किया तो N C R M B Q डिटर्मिनेंट. तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा. दैट मींस इन एनी ऑफ द स्टेप ऑफ द डिटर्मिनेंट आई कैन इंटरचेंज द टू रोज और टू कॉलम्स फॉलोड बाय नेगेटिव साइन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4. Now let us come to property number 5, and the property number 5 is, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है कि I want to break some row और some column. इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ. सपोज करो मेरे पास we are having a determinant x plus a y plus b z plus c l m n P Q R. ये एक डिटर्मिनेंट है. दिस डिटर्मिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू टू डिटर्मिनेंट्स. और एक बार में एक बात समझने वाली यहां पर ये है, इन वन टाइम ओनली वन रो और वन कॉलम विल बी ब्रोकन एट वन टाइम. दैट मीन्स आई विल राइट दिस डिटर्मिनेंट एज टू डिटर्मिनेंट्स इन विच x y z l m n p q r डिटर्मिनेंट प्लस A B C L M N P Q R determinant. This equal to this plus this. एक बार में जैसे फर्स्ट रो ब्रेक हुआ है तो फर्स्ट रो ही ब्रेक हुआ है, बाकी दोनों सेम रहे हैं. मान के सपोज करो, चलो मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि एक बार में एट वन टाइम ओनली वन रो और वन कॉलम विल बी ब्रोकन. उससे दो डिटरमिनेंट बनेंगे. ये नहीं कि सर ये L प्लस L तो 2 रहना चाहिए. दिस इज नॉट मैट्रिक्स, दिस इज डिटरमिनेंट. इफ आई विल फाइंड इट्स डिटरमिनेंट एंड इट्स डिटरमिनेंट एंड इट्स, देन द एडिशन ऑफ दीस टू डिटरमिनेंट विल गिव मी दिस. डेफिनेटली विल गिव दिस. अच्छा, जैसे मान लो और बताता हूं, इसमें एग्जांपल देते हैं. जैसे मान लो ये एक फर्स्ट बात बताइए और क्या है. सपोज करो मेरे पास क्या है, x प्लस a y प्लस b z प्लस c L प्लस P M प्लस Q N प्लस R, और यहां पर आगे सपोज करो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C. मान लो इस टाइप से ये डिटरमिनेंट है. अब ऐसा नहीं है कि तुमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया. क्या कर दिया कि सर यहां पर कर दो x y z, यहां पर कर दो L M N, यहां पर कर दो A B C प्लस बाकी लिख दो A B C P Q R A B C. This is wrong. This is absolutely wrong. क्योंकि मैंने क्या बताया, at one time only one row or column will be broken. So this is wrong. So what I will do? What I will write? So I will write here as, ये तो ठीक है, एक बार में फर्स्ट रो. अब तुम पे डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट रो को ब्रेक करना है कि सेकंड रो को ब्रेक करना है. तो क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट रो को ब्रेक कर दिया x y z a b c, ठीक है. अब ये सेकंड रो नहीं टूटेगी. जब फर्स्ट रो टूट गई सेकंड रो सेम, मतलब दोनों में सेम. क्या आएगा, l प्लस p m प्लस q n प्लस r. l प्लस p m प्लस q n प्लस r. दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. क्यों भाई, ये रो और ये रो सेम है और इसको मैंने ब्रेक कर दिया, बिल्कुल ठीक है. अब मुझे अगर मान लो और ब्रेक करना है तो अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं. नाउ आई कैन ब्रेक दिस यूजिंग, अब ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, दिस विल बी एल एम एन ए बी सी प्लस, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, इस पे आया नहीं हूं मैं अभी. प्लस अब ये पी क्यू आर वाला पार्ट, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डिटरमिनेंट, और प्लस में अब ये वाला पार्ट यहां रहेगा पूरा. और उसको ब्रेक करना तो उसको भी दो बार ब्रेक कर सकते हैं. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम ब्रेक होगा. कॉलम भी ब्रेक हो सकता है. जैसे कि मान लो मेरे पास ये है, सपोज करो क्या है, x y z p q r
A plus B, C plus D, E plus F. So what I will write? X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C plus X, Y, Z, P, Q, R, A, C, E, sorry, A, C, E, A, C, E, B, D, तो यहां पर हमने कॉलम 3 को ब्रेक कर दिया, तो सिर्फ एक को ही किया है। तो मेन बात समझाने वाली सिर्फ ये है कि व्हेनेवर आई एम ब्रेकिंग एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम दैट विल ब्रोकन वंस ओनली, एक बार में एक ही ब्रेक होगा, उसके बाद और ब्रेक करना तो और ब्रेक कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, देन दिस कैन बी ब्रोकन इनटू दिस, उसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और कॉलम को ब्रेक करना है तो एक बार में एक थर्ड कॉलम ब्रेक हो गया, बाकी दो सेम रहेंगे। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5. We will use these properties in the question, then you will see how to use them, how we will prove the questions using these properties. Now let us come to the property number 6, that is suppose we are having x, y, z, p, q, r, l, m, n, but I want to multiply this row. I want कि भाई मुझे रो 2 में ना, मुझे रो 2 को एक कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैन डू सो। मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आर आई इसको बोलते हैं, इन जनरल क्या बोलते हैं, इन जनरल इसको बोलते हैं, इन जनरल आर आई गोज टू कांस्टेंट टाइम्स आर आई, और वी कैन से सी आई गोज टू कांस्टेंट टाइम्स सी जे, बोथ आर करेक्ट, जो हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में किया था और कॉलम में भी किया था। आई कैन मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी पर्टिकुलर नंबर, बट what I will do, suppose I am doing R2 goes to KR2, so what I will write? I will write X, Y, Z, KP, KQ, KR, L, M, N. Outside the determinant, I will write 1 by K. Outside the determinant, I will write 1 by K. ये करना है। If I am multiplying any number in any particular row or any particular column, I will write 1 by that number outside the determinant. For example, मान लो इसी वाले में बता, ये तो हमने कर दिया। इसी वाले में सपोज आई एम डूइंग C3 goes to L टाइम्स, L यहां पर नहीं, मान लो कुछ और कर दो, लैम्डा कर दो, लैम्डा टाइम्स C3 goes to लैम्डा टाइम्स C3 करना, तो व्हाट आई विल राइट 1 by लैम्डा आउटसाइड द डिटरमिनेंट X P L Y Q M लैम्डा Z लैम्डा R लैम्डा N. That means if I am multiplying any number in any particular row or column, then I have to put 1 by that number outside the determinant. This is the property number 6. Now let us come to the property number 7, the reverse of this property, that is if we are having, अब वहां पर सेम बात है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाहर डिवाइड करना पड़ा, और अगर डिवाइड करूंगा तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज अब इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। कॉमन कैसे निकालते हैं? सपोज करो मेरे पास एक डिटरमिनेंट इस तरीके से है, क्या है कि भाई एक्स वाई जेड ए एल ए एम ए एन बी पी बी क्यू बी आर, मान लो ये है मेरे पास, इस तरीके से डिटरमिनेंट है। तो जब कॉमन आता है कोई नंबर, कॉमन आएगा तो वो एक रो या एक कॉलम से आएगा, कॉमन आएगा तो वो एक रो या एक कॉलम से आएगा, यानी कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आएगा। जैसे यहां पर R2 से कॉमन क्या आ रहा है A, और R3 से कॉमन क्या आ रहा है B, तो इसमें A भी कॉमन आएगा और B भी कॉमन आएगा। R2 से कॉमन आ गया A और R3 से कॉमन आ गया B, और कॉमन निकाल के बाहर लिख दो A into B और अंदर लिख दो X Y Z, ये कॉमन आ चुका है तो ये बन गया LMN और ये बन गया PQR। तो मेन बात समझने की ये है कि अगर कॉमन निकालना है डिटरमिनेंट से तो दैट कॉमन विल कम फ्रॉम वन रो और वन कॉलम, एक रो से। ये नहीं कि भाई ए यहां पे, अगर मान लो सपोज करो यहां पर ऐसा होता, चलो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ये तो हमने कर दिया। मान लो एक क्वेश्चन आया मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन कोई दूसरा है, दूसरा कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या कि भाई एक्स वाई जेड ए एल ए एम ए एन ए पी ए क्यू ए आर डिटरमिनेंट। तो अब ये नहीं कि तुमने सिर्फ ए कॉमन निकाल के यहां बोल दिया एक्स वाई जेड ए एल, ए तो निकल गया सॉरी, एल एम एन पी क्यू आर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक बार तुमने ए यहां से कॉमन निकाला, फिर एक बार तुमने ए यहां से कॉमन निकाला, तो बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा ए स्क्वायर आउटसाइड। जैसे यहां पर ए और बी आया तो ए इंटू बी आया, तो यहां पर ए यहां से ए स्क्वायर आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम हैविंग, थर्ड एग्जांपल मान लो, दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज सेकंड एग्जांपल
दिस इज थर्ड एग्जांपल. सपोज करो मेरे पास क्या है, LA LB LC MN MP MQ और इसको मान लो लैम्डा A डैश लैम्डा B डैश लैम्डा C डैश, मान लो इस तरीके से. अब यहां से L कॉमन आ रहा है, यहां से M कॉमन आ रहा है, यहां से लैम्डा कॉमन आ रहा है. क्या करेंगे, L भी कॉमन निकाल लेंगे, M भी कॉमन निकाल लेंगे, लैम्डा भी कॉमन निकाल लेंगे. L M लैम्डा, L भी कॉमन, M भी कॉमन, लैम्डा भी कॉमन. जो बच गया वो लिख दो, A B C N P Q A डैश B डैश एंड C डैश. So this is the property which we have to use while taking common. We will take common from any particular row or any particular column. And last property we are having, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, उसको डिटेल में नहीं समझाना. हमने किया है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम में. क्या किया है, that Ri goes to Ri plus minus constant times Rj, और Ci goes to Ci plus minus constant times Cj. हमने बहुत किया. R1 goes to R1 minus 2 R3 किया था हमने, बताया था एक बार. जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट है, यहाँ पर 1 3 4 है, 2 1 7 है, 3 minus 1 9 है. मान लो मैंने यहाँ पर किया नहीं था, ऐसे क्या किया था, R2 goes to R2 minus 2 R1 किया था ताकि ये 0 बन जाए. उस टाइप से आई कैन यूज एनी प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ रो, इन टर्म्स ऑफ कॉलम. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में विल यूज दिस प्रॉपर्टी आल्सो, और ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम. क्या, दैट R1 goes to R1 plus R2 plus R3 in case of 3/3, or we can say C1 goes to C1 plus C2 plus C3. This property we can use as well in the questions. Now today what we did the 8 properties, only properties, no example. Now tomorrow in the next video what we will do, we will show the application of these properties, how to solve the question. One question from this topic will 100% come in the exam, 100%. Each year, हर साल एक क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड, प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट बेस्ड. तो these are the properties. Just revise the properties. In the next class we will do the questions based on these properties. Okay, thank you.